reproduction is by the zoospores. Zoospores are microscopic and they are motile. They have flagella, these flagella. Okay, by help of these flagella, they move, they swim. Okay, and then in fungi, especially in the penicillium, the asexual reproductive structures are called conidia. See these structures? Yeah, these structures. These structures are called conidia. They are born on the special branch. The branches are called conidiophores. Okay, so conidia are born outside the body. Yes, they are outside the body and they are non-motile because they have no flagella. Okay. Then talking about the hydra, budding in hydra, the hydra reproduces asexually by the formation of bud. See, the bud is formed, it is immature, then it starts growing, then it detaches itself from the parent, and then a new organism is formed from the parent organism. Okay, so bud develops into the adult. So this is the example of budding in the hydra. Again, we have the budding in sponges, bud found within the parents, and buds are equal to the gamules. Okay, so in sponges we have the reproductive structures. They are gamules. These small dart-like structures, they are the gamules. Okay. Punit, no alga reproduce with the help of conidia. Fungi reproduce with the help of conidia. Okay, algae reproduce with the help of zoospores. Okay, got it? And only some algae, not all the algae. When we will study about the algae, we will study there which algae reproduce with the help of zoospores and which algae reproduce with the help of other spores. Okay. So these are the gamules. These dart-like structures are present in the sponges. Okay. So these are also buds and they are formed within the parents. These dart-like structures. Okay. So now let's see the story of a plant. These are this. For example, this is a plant. We keep the branches of the plant in the water. After some times, the root develops here. After the development of roots, we transfer it into the soil. The plant develops, okay, and then we take these plants again from the soil, and we can again propagate it. So what it is called? This is called the vegetative reproduction. What is vegetative reproduction? क्या होती है vegetative reproduction? It is the formation of new plants from vegetative parts of the plant. ठीक है, कोई भी vegetative part हो, branch है, leaf है, stem है, ठीक है, उसको अगर हम लेंगे और उससे एक नया प्लांट डेवलप होता है तो हम इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेट से ही होगा, या फिर मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट. ओके, उन्हीं से होगा. लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये किसी भी प्लांट के पार्ट से हो सकता है, वेजिटेटिव पार्ट से. ओके, द वेजिटेटिव यूनिट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हम किसको कहेंगे? वो स्ट्रक्चर जिसको हम यूज कर रहे हैं. अगर हम ब्रांच को यूज कर रहे हैं तो ब्रांच जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है. ओके, इट इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now, what are the different types of vegetative propagation? Okay, in the video, let's study about the different types of vegetative propagation. Natural vegetative propagation, artificial vegetative propagation. कौन-कौन से हैं? Natural vegetative propagation, artificial vegetative propagation, जहां पे
आर्टिफिशियल शब्द आ जाएगा, इसका मतलब है कि कहीं इंसानों की दखल अंदाजी इन्वॉल्व है उसमें, ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण। सो आर्टिफिशियल है जी डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय मीन्स ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। जब हम अपनी दखल अंदाजी से एक पेरेंट प्लांट के साथ इंटरवेंशन करके उसके वेजिटेटिव पार्ट्स से एक नया प्लांट बना दें, चाहे ग्राफ्टिंग करें इसमें या और तरीके इस्तेमाल करें, कटिंग करें, लेयरिंग करें, वो सब अभी हम देखते हैं कि क्या क्या तरीके आर्टिफिशियल हो सकते हैं। गुलाब के पौधे में आपने देखा होगा और भी कई प्लांट्स में आपने देखा होगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण हम एक प्लांट का स्टेम काट के दूसरे प्लांट के स्टेम के साथ जोड़ते हैं, है ना। So that is human intervention. So that's why we call it artificial vegetative propagation. और natural, स्वाभाविक सी बात है कि जब naturally जो चीज अपने आप हो रही है। Vegetative propagules of the plant detach from the body of the mother plant and develop into new plant under suitable conditions without human intervention. Simple. Vegetative propagules मतलब वो पार्ट्स जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाएं और उनका अपना अस्तित्व हो जाए, फिर वो ग्रो करें और प्लांट बनाएं नेचुरल तरीके से विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो दो मेन बातें हो गई। So students, vegetative propagation are of two types, natural and artificial. Okay, vegetative propagules are plant detached from the body of the mother and develop into the new plants under suitable conditions without human intervention. It is natural one. ठीक है, अगर humans के intervention होती है उसमें, अगर humans grow करते हैं तो then it is called the artificial. ठीक है. So let's quickly solve a question. Which of the following cannot be used as vegetative propagules? Stem, leaves, bulb या फिर ovule? बहुत इजी क्वेश्चन है। हम किसको नहीं यूज कर सकते हैं एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इनमें से? स्टेम, लीव्स, बल्ब्स और ओव्यूल्स। So I can see 33 out of 33 students have answered so far. 34 now. So 10 seconds left. बाकी स्टूडेंट भी आंसर करें जल्दी जल्दी। 35. Okay. So 19 out of 39 students have answered it correctly. ठीक है, तो करेक्ट इसका आंसर है थ्रो ओव्यूल्स। ओके, क्योंकि हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स स्टेम भी यूज करते हैं, लीव्स भी यूज करते हैं और बल्ब भी यूज करते हैं। ओव्यूल जो है सेक्सुअल स्ट्रक्चर है। ओके, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। सो ओव्यूल इज द आंसर हियर। So ovule is the part of flower. Flower is the reproductive part of the plant. सही है, कोई शक? Thus, ovule is a structure associated with sexual reproduction and cannot be used as vegetative propagule. सीधी सी बात है, अगर सेक्सुअल स्ट्रक्चर है तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल यूज नहीं कर सकते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये सब हमने देखा, स्टेम, लीव्स, बड, ये सब हम यूज कर सकते हैं एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ओके, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट स्टूडेंट्स यहां तक? नो सर। ओके, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड। ओके, दैट साउंड्स गुड। तो हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने देखा, स्टेम से भी हो सकती है, रूट से भी हो सकती है, लीव से भी हो सकती है ना।
तो अब हम इंडिविजुअली एक एक करके सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, सो यू आर रेडी? तो हम रूट प्रोपेग्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं. Both tap and adventitious roots. Remember, tap roots, adventitious roots, they develop adventitious buds to form new plants. तो adventitious buds, ये टर्म ध्यान रखिएगा. अभी हम डिस्कस करेंगे what are adventitious buds. टैप रूट में भी बनती है adventitious buds, adventitious roots में भी बनती है adventitious buds. So taproot as well as adventitious root develop adventitious buds to form new plant. Now the question is, ये जो adventitious buds हम कह रहे हैं, ये birds हैं क्या? पहले हम सादी भाषा में बर्ड समझ लेते हैं. वैसे मैंने आपको बताया भी था एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड. देखिए बर्ड्स क्या होती है. स्मॉल लेटरल और टर्मिनल प्रोट्रूबरेंसेस. प्रोट्रूबरेंसेस, कोई चीज प्रोट्रूडेड हो, उभरी हुई हो, या तो एपिकल हो, मान लो ये प्लांट का एपिकल पार्ट है, यहीं पे एक उभरी हुई चीज आपको नजर आ रही है, या कहीं साइड में लेटरल नजर आ रही है. तो एपिकल और लेटरल दो टर्म्स कही गई हैं. स्मॉल लेटरल और द टर्मिनल प्रोट्रूबरेंस ऑन द स्टेम ऑफ अ vascular plant. They may develop into a flower, the bud may develop into flower, it may develop into leaf, it may develop into shoot. They usually arise in the apex or the axil of the leaf. Apex पे अगर bud develop करती है तो apical bud कहलाती है, और अगर लीफ के एक्सिल पे डेवलप करती है तो एक्सिलरी बड कहलाती है. और ये ब्लड जो है, ये जो बड है, राइट, दिस बड गिव्स राइज टू, it can give rise to a flower, it can give rise to a leaf, it can give rise to the shoot. Now the question is कि हमने apical bud, axillary bud का तो जिक्र कर लिया. What are these adventitious buds? They grow out of different places, अलग अलग जगहों पे, other than the apex of the plant or the axil of the leaf. एक्चुअल जगहों पे ना ग्रो हो करके, जहां पे कि एक्सपेक्टेड है कि उसे होना चाहिए था, राइट जी. टर्मिनल रीजन पे एपिकल बर्ड, एक्सिलरी रीजन पे एक्सिलरी बर्ड, वहां से ना होकर के डेवलप कहीं और से डेवलप करे. दे ग्रो आउट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों से. दे सर्व एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल. ये टर्म हमने पहले भी देखा था कि एडवेंटिशियस बर्ड्स वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम करते हैं. तो यहां पे हमने ये क्रॉस क्यों लगाया कि जो एडवेंटिशियस बर्ड है वो एपेक्स से नहीं बनेगा, वो एक्सिल ऑफ द लीफ से नहीं बनेगा, वो किसी और जगह से डेवलप हो जाएगा. टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स, दे डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स, राइट. तो ये बर्ड्स जो हैं कहां बन रही हैं? टैप रूट में भी एंड एडवेंटिशियस रूट में भी, एंड दे गोइंग टू फॉर्म द न्यू प्लांट. एग्जाम्पल, टैप रूट में जब एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप होता है, डेल्बर्जिया एंड पॉपुलर. Examples for the adventitious roots. Examples are important. ये नोट करते जाइए, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है. स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जो है, टेपियोका, डहेलिया, एस्पैरागस, कॉमन है, देखे होंगे आपने, ठीक है जी. सो स्वीट पोटैटो में देखिए शकरकंदी आपने देखी होगी. यंग प्लांट जो है वो डेवलप कर जाता है एडवेंटिशियस बर्ड से. सो एडवेंटिशियस बर्ड बना, और एडवेंटिशियस बर्ड क्या है? जो कि मेन पार्ट से नहीं डेवलप हो रहा, जहां से कि होना एक्सपेक्टेड था. बर्ड्स एपिकल रीजन से बनती हैं या लेटरल से बनती हैं, ऐसा ना होकर के किसी और जगह से बन रहा. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा बोथ टैप एंड एडवेंटिशियस रूट डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स. ठीक है, इन पे क्या बनते हैं? एडवेंटिशियस बर्ड्स बनते हैं टू फार्म न्यू प्लांट्स. तो एडवेंटिशियस बर्ड्स जो हैं उन्हीं से नए प्लांट बनते हैं. ठीक है, और एग्जांपल्स क्या हैं? डेल्बर्जिया है, पॉपुलर है, ठीक है. और एडवेंटिशियस रूट्स की अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, तो स्वीट पोटैटो है, टेपियोका है, दलिया है एंड एस्पैरागस है. ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं एडवेंटिशियस रूट्स के. ओके, there are structures other than the roots that
एज प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं अदर देन रूट्स भी हैं जो कि प्रोपेग्यूल एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप तो पहचान गए होंगे इनको देखे, ठीक है। व्हाट इज दिस? यस स्टूडेंट्स, किस किसने किचन में देखा है इसको? Onion, sir. Onion. Yes, you can write it Onion, in the potato, chat box. ginger. Yeah, it is onion. Onion, sir. Second one, Potato. Potato. yes, Sania, Muskan, Sakshi, it is Potato, sir. ठीक है। Yes, ठीक है। थर्ड वन क्या है बताइए? Coconut. कोकोनट है Coconut. ना? कोकोनट है पक्का? श्योर? Sir. Great. Coconut. And what is the fourth one? Yes, sir. Ginger. Yes, it's ginger, ठीक है। Okay, good. Thank you students helping me. तो हम वीडियो में देखते हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में। Yes. अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं। ट्यूबर, बल्ब, कॉम, ये सारे शब्द हमने, ये सारी टर्म्स पढ़ी हुई हैं, फिर से डिस्कस करेंगे हम, चिंता मत कीजिए। सो अंडरग्राउंड स्टेम में वी हैव राइजोम, लिखिए आप साथ के साथ राइजोम। आपको याद भी आ रहा होगा, हाँ कितनी सारी चीजें पढ़ी थी, अदरक के बारे में भी पढ़ा था हमने, प्याज के बारे में भी पढ़ा था हमने, उसके अलावा पोटैटो के बारे में भी पढ़ा था। सो राइजोम, ट्यूबर, बल्ब एंड कॉम, सब एरियल पे हम बाद में आते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस जो हैं, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये राइजोम, ये ट्यूबर, ये बल्ब, ये कॉम, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। इनके जरिए जो है नए प्लांट का निर्माण होता है। स्टेम से भी नया प्लांट बन सकता है इन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन से। देखिए जी आपके सामने क्या है, अदरक, कॉमनली जिंजर घर में यूज करते हैं, आपने देखा ही होगा। अदरक आप लेकर के आए, आपने किचन में ये घर में कहीं भी स्टोर करके रख दिया, कुछ दिनों बाद आपने देखा उसमें से छोटी छोटी ऐसे बड जैसी चीज निकली हुई है और वहां से एक नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो गया। अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम क्या है? ये फूड स्टोर करता है फॉर पेरिनेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। बर्ड्स अराइज फ्रॉम द स्टेम एंड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, राइट? एज यू कैन सी हियर, बड डेवलप कर रहा है और नया प्लांट बन रहा है। यू कैन सी द नोड्स, यू कैन सी द इंटरनोड्स ऑल्सो। ओके, राइजोम में एग्जाम्पल जिंजर याद रखिएगा। ट्यूबर में वेरी कॉमन एग्जांपल आलू, पोटैटो जो हैं, अक्सर आपने देखा है घर में लाके किचन में टोकरी में हमने रखे, थोड़े दिनों बाद देखा कि भाई हम कहते हैं देखो जी आलू की आंखें निकल आई हैं, उस आंख में से, उस आई में से एक नया हमें प्लांट देखने को मिल जाता है और उसे ले जाकर के आप अपने गार्डन में, बगीचे में या आप गमले में भी उसे रख देंगे तो यू विल सी द पोटैटो प्लांट इमर्जिंग आउट ऑफ इट। ट्यूबर यूजुअली शॉर्ट एंड थिकन, इट कंटेन्स द स्टोर्ड स्टार्च। Starch, the reserve food material in case of plants. Starch के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन से बना होता है। अल्टीमेटली स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, याद कर लीजिए, राइट? आलू आपने उबाला, उबला हुआ आलू आपने खाया, उसे चबाया, कौन सा एंजाइम उस पर एक्ट करता है? सलाइवा में। कैन यू नेम दैट एंजाइम? सेलिवरी अमाइलेज, टाइलिन, डायस्टेस, जो स्टार्च को तोड़ना शुरू करता है। एनीवे, लेट्स कम बैक टू ट्यूबर। They bear minute scale-like leaves with buds capable of developing into new plant. देख पा रहे हैं आप यहाँ पे गौर से? ठीक है जी? Minute scale-like leaves with buds that are capable of developing into new plants. So हमें ट्यूबर में एग्जाम्पल याद रखना है जी पोटैटो का, इससे पहले राइजोम में एग्जाम्पल याद रखा हमने जिंजर का। बल्ब, प्याज, कॉमन एग्जाम्पल है। अनियंस, stem is shortened to disc from which roots arise. Can you see here? ये reduced stem, ये वाला हिस्सा प्याज का, यहीं से जड़ें निकली होती है ना नीचे प्याज की।
लीफ बेसिस आर अटैच टू द अपर सरफेस ऑफ द स्टम। लीफ का बेस जो है अपर सरफेस ऑफ द स्टेम से अटैच्ड है। यहां पे आप कंप्लीट डेवलपमेंट देख पा रहे हैं। प्याज में भी अक्सर यही होता है कि प्याज अपने रखे हैं रसोई में, थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि जड़ें भी कितनी सारी निकल आई हैं और उसमें से हम कहते थे ना प्याज तो उगने लग गए हैं, ये है ना। आप उसे ले जाके मिट्टी में लगा दीजिए, आप देखेंगे पूरा अनियन प्लांट डेवलप हो जाएगा। Axillary buds found at the node where leaves are attached. Okay, the example for the bulb is onion, the common example. Do you know that onions are good source of iodine? प्याज जब आप काटते हैं तो आंसू क्यों निकल आते हैं? प्याज में सल्फर होता है ना। सल्फर जो है हमारे जो कॉन्जंक्टाइवा है, यहाँ पे मॉइस्चर भी होता है। सल्फर जब उसके साथ जुड़ता है तो सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है जो इरिटेट करता है आईज को, जिसके कारण हमें बहुत इरिटेशन होती है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। कहते हैं प्याज को काट के थोड़ी देर पानी में डाल के छोड़ दीजिए, है ना, तो उसका सल्फर जो है सारा निकल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। फिर आप उस प्याज को जब छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे फिर आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। एनीवे, कॉम अरबी दिख रही है आपको यहाँ पे, कोलोकेसिया अरबी, unbranched swollen underground stem having circular nodes that have buds for growth of the daughter plants. So this is the node, this is the daughter कॉम। अरबी की गांठें होती है ना, एक के साथ एक जुड़ी हुई, ऐसे कितना इंट्रिकेट सा स्ट्रक्चर बना होता है। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ कॉम। ये सभी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स थे। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस की हम बात कर रहे थे, वेदर इट इज ट्यूबर, whether it is rhizome, whether it is bulb, whether it is corm. So dear students, type of underground stem क्या क्या है? Rhizome, for example ginger, tuber, example है potato, bulb, example है onion, and corm, example is a colocasia. ठीक है, all these structures are called vegetative propagules. ठीक है, क्योंकि ये vegetative propagation में help करते हैं. Okay, so see this beautiful flower, this is the water hyacinth. ठीक है, beautiful तो है, but have you read about this flower? The dark side of this flower, किसी ने पढ़ा है? ठीक है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। मुस्कान, यस, इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्यों, आप बताएंगे? ओके, आई विल टेल। ठीक है, देखो क्या होता है, इन्वेडिंग द वाटर बॉडीज इन नो टाइम। इसकी आयशा करेक्ट, इट रिमूव्स द ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो क्या होता है, इन्वेडिंग वाटर बॉडीज इन नो टाइम, इतना फास्ट इसकी ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा फास्ट। एक बार वाटर में गया, इसकी रिप्रोडक्शन इतनी फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए ग्रो करता है। ओके, ठीक है, और जैसे ही वाटर में ये ज्यादा हो जाएगा, इसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, तो ऑक्सीजन जो होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर में है, कंज्यूम होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। ये प्लांट ज्यादा हो रहा है ग्रोथ इसकी, तो ये कंज्यूम करेगा, तो उससे क्या होगा कि बाकी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे फिश है या फिर अदर वाटर में जो ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाता है। तो उससे एक चीज इंक्रीज होती है, दैट इज BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हुई, तो जैसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि वाटर जो है इम्प्योर हो गया है। ओके, और सर्वाइवल दूसरे ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस वाटर में। ओके, तो इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया है। तो हम वीडियो में देखते हैं कि सब एरियल स्टेम प्रोपगेशन क्या है।
और अब हम आते हैं सब एरियल, एरियल एयर हवा, सब एरियल हवा से नीचे, मतलब जमीन के भी संपर्क में रहे और हवा के भी संपर्क में रहे, सॉइल के टच में भी और ऊपर भी, कुछ इस तरह का सीन अगर हो जाए तो सब एरियल कहते हैं। रनर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टोलन एंड ऑफसेट एंड सकर्स। रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर, लिख लीजिए ये टर्म, साथ के साथ याद होनी चाहिए। सब एरियल modifications, runner, stolen, offset and sucker. So these structures, they are called vegetative propagules. जैसा हमने अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में बल्ब को, राइजोम को, उनको भी तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहा था ना, ऐसे ही ये भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। आपने पुदीने में देखा होगा, हम अक्सर कह देते हैं ना, हाँ पुदीना लगा हुआ है जी, कहीं मिंट जो है तोड़ करके आप लगा दीजिए कहीं दूसरी जगह, अपने आप उग जाएगा। घास उगी हुई है, ग्रास है, छोटी सी आपने उसकी ब्रांचेस तोड़ी और उसको कहीं और लगा दिया, वहां से वो उग जाएगा। ओके, सो विल डिस्कस अबाउट रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर। सब एरियल स्टेम में पहले रनर का जिक्र करते हैं जो कि ग्रीन होते हैं। दे डेवलप एट द बेस ऑफ इरेक्ट शूट। देखिए इधर गौर से, आपको दिखाया गया है, कैन यू सी, ये सो दे आर डेवलपिंग एट द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट। शूट इरेक्ट है, उसके बेस से डेवलप हुआ और फिर उससे नया प्लांट ग्रो कर गया। दे आर नैरो क्रीपिंग हॉरिजॉन्टल स्टेम, नैरो है, क्रीपिंग है, हॉरिजॉन्टल है, विद लॉन्ग इंटरनोड्स एंड नोड्स बियरिंग द एक्सिलरी बर्ड्स, जैसे कि लॉन ग्रास है, घास जो है। देखिए गौर से, आपको इस छोटे से एनिमेशन के जरिए चीज दिखाई गई है कि किस प्रकार ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करके नए प्लांट का निर्माण कर रहे हैं रनर्स। लेट्स सी व्हाट आर स्टोलन्स। वीक है, कमजोर है। लेटरल ब्रांच दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम, मेन स्टेम के बेस से एक कमजोर लेटरल ब्रांच निकलती है। After growing aerially for some time, it bends downwards to touch the ground. थोड़ी देर तक एरियल ऊपर को जो है वो ग्रो करी, then it touches the ground, जहां पे उसकी टर्मिनल बड गिव्स राइज टू न्यू शूट एंड एडवेंटिशियस रूट, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज में। बहुत से बच्चों की फेवरेट होंगी स्ट्रॉबेरीज। सो स्टोलन में एग्जाम्पल इज स्ट्रॉबेरीज, याद रहेगा जी। चलिए, सब एरियल स्टेम में नेक्स्ट इज ऑफसेट, दैट इज रनर ऑफ द एक्वेटिक प्लांट। थोड़ी देर पहले यही तो जिक्र करा था कि जो हमारे लिए एक समस्या बन गई। ओके, सो ऑफसेट क्या है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम लीफ एक्सिल, लीफ के एक्सिलरी रीजन से ग्रो करता है। It runs horizontally, having rosette of leaves above and adventitious roots below. इकोर्निया, वाटर हाइसेंथ जिसका हमने जिक्र करा था, खूबसूरत सा ये पौधा जो हमारे लिए एक मुसीबत बन गया। राइट जी। ऑफसेट एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल्स ही पूछे जाएंगे। सकर्स मिंट में पाए जाते हैं, पुदीना। डेवलप फ्रॉम एक्सिल ऑफ द स्केल लीफ in the underground part of the stem, grows horizontally below the soil for some time and comes above the soil and produces the aerial shoot. थोड़ी देर तक ये horizontally below the soil grow करता है and then it comes out of the soil and produces aerial shoot. Mint. So, students, sub-aerial stem propagation, we have natural vegetative propagation in roots and leaves. Okay, and under this category, we have underground stems or sub-aerial stem modifications. और sub-aerial stem modifications में हमने क्या-क्या पढ़ा? Runner, stolon, offset and sucker. ठीक है? तो रनर की क्या एग्जांपल है? ग्रासेस, ठीक है, जो हम सानेडॉन ग्रास देखते हैं अपने पार्क्स वगैरह में। स्टॉलन की एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी एंड जैस्मिन। ऑफसेट की एग्जांपल है पिस्टिया एंड आइकोर्निया। सक्कर्स की एग्जांपल है क्राइजेंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल। ओके, तो स्टूडेंट्स एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन चीजों को अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए
क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं. ओके, so get ready. Let's quickly solve a question. Which of the following statements are incorrect? Runners are wide, brown, creeping horizontal stems with long internodes. Offsets are subaerial modifications seen in the aquatic plants. Runners auxiliary bud present at the base of the stem. D is weak lateral branch arising from the base of the main stem are called the stolons. So you have to select the incorrect statement. गलत statement select करना है आपको. Thirty seconds left. 24 have answered. बाकी लोग $15 seconds left. 30 have answered. Okay, so time up. 34 students have answered and only 8 students have got it right. Okay, so Sheetal, Sandeep, Riya, Muskan, Krishna, Sanya, Rushi, Ridhi, these students have answered it correctly. Okay, so well done. बाकी students के लिए भी well done. You tried. Okay. So option A, runners are wide, brown, creeping, horizontal stems with long internodes. ये statement बिल्कुल गलत है. ठीक है, क्यों गलत है हम देखते हैं. ठीक है, रनर्स क्या हैं? दे आर स्लेंडर स्ट्रक्चर्स, नॉट वाइड. ठीक है, सबसे पहली गलती. arise from auxiliary bud present at the base of stem. That's why statement is incorrect. Okay. तो कोई डाउट यहां तक स्टूडेंट्स बताइए. No, sir. यस, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे. अगर कोई डाउट है तो लिखिए, वरना नो, यस और नो. Okay, that's great. So now let's learn about the vegetative propagation through the leaves. तो हम वीडियो में देखते हैं कि how vegetative propagules बर्ड्स ग्रोइंग से नया प्लांट ग्रो कर सकता है. सो ऑल इन ऑल बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्या कि प्लांट के मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी फ्लावर या सीड से नए जीवन का निर्माण ना हो करके जब प्लांट के ही वेजिटेटिव हिस्सों से नए प्लांट्स बनने लगते हैं, वो वेजिटेटिव हिस्से जो इसमें इन्वॉल्व हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहलाते हैं. चाहे वो एडवेंटिशियस बर्ड्स हो टैप रूट सिस्टम में या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में, या फिर वो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस हो जैसा हमने बल्ब देखा, कॉम देखा, राइट, या फिर वो सब एरियल मॉडिफिकेशंस हो जिसमें रनर, स्टोलन, ऑफसेट
ये चीजें देखिए हम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो new plants grow from the buds growing on the margin of the leaves. Okay, the example is the bryophyllum. ठीक है, तो bryophyllum के लीव्स सबने देखे होंगे कि the buds grow on these leaves. ठीक है, these were ways which plants naturally show vegetative propagation. ठीक है, कैन वी डू दैट आर्टिफिशियली टू? ठीक है, अभी तक हमने जो मैकेनिज्म देखे ये तो नेचुरल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। क्या आर्टिफिशियली भी हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं? यस और नो? स्टूडेंट्स, यस और नो? आर्टिफिशियली हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं या नहीं? गुड, ठीक है, यस वी कैन डू, एंड लेट्स लर्न इन डिटेल हाउ. It can happen only when humans join the hand with the natural processes. तो क्या होता है कि जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उन्हीं को ह्यूमंस मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हाउ. So in the video, let's learn the artificial vegetative propagation. एंड ग्राफ्टिंग, तीन है मेन चीजें, नोट्स बना लो साथ साथ। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव तरीके, नंबर 1 कटिंग, नंबर 2 लेयरिंग, नंबर 3 ग्राफ्टिंग। चलिए जिक्र करते हैं पहले कटिंग का। प्लांट इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल, यूजुअली अ स्टेम और अ लीफ ऑल्सो। मेन जो प्लांट है जिसमें कटिंग के तरीके से प्रोपेगेशन संभव है, हर प्लांट में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि कोई भी पौधा आपने लिया, काट दिया और लगा दिया उसे तो वो लग जाएगा, नहीं। सो अ कंप्लीट न्यू प्लांट अराइजेस फ्रॉम दिस पार्ट इवेंचुअली, एज यू कैन सी हियर। कैन यू गेस ये किस प्लांट में कटिंग हो रहा है? ये कांटे देख करके आप अंदाजा लगा सकते होंगे। कैन एनीवन गेस कि ये स्टेम कटिंग से कौन सा प्लांट जो है हम ग्रो करा रहे हैं? एनी गेसेस? बताइए जी। नाउ क्या आपने कभी ये होते हुए देखा है ऐसा? 3 colors in 1 hibiscus, देखा है जी ऐसा? सुंदर लग रहा है ना कि 3 रंग नजर आ रहे हैं भाई एक ही जगह पे। ये कैसे संभव हो जाता है देखते हैं। ये संभव होता है ग्राफ्टिंग प्रक्रिया के जरिए, process through which a stem is cut and tied over stem of another plant having roots. मान लीजिए ये एक प्लांट है, इसके पास जड़ें हैं जी अपनी, दूसरा प्लांट है, ऑफ कोर्स जड़ें उसकी भी होंगी। हमने यहां से स्टेम काटा और हमने उसे दूसरे प्लांट के स्टेम के साथ जोड़ दिया जिसके पास की रूट्स है, ताकि वहां से न्यूट्रिशन उसे मिल सके। I'll repeat, the process through which a stem is cut and tied over stem of another plant having roots to combine characteristics of both plants in one, दोनों के गुण एक में ही आ जाएं। देखिए पूरी प्रक्रिया देखते हैं हम। ये आपने स्टेम ले लिया विद डिजायरेबल कैरेक्टर, जो आपको गुण चाहिए, राइट जी। रूट ऑफ द मेन प्लांट, ये वो प्लांट है जिसकी रूट्स इंटैक्ट है। फ्लैप ऑफ बार्क ओपन्ड टू रिसीव द स्टेम, उसकी बार्क को हमने हल्का सा छीला, टू रिसीव द स्टेम जो आप उसमें डालने जा रहे हैं। अब आप देखिए ये हमने स्टेम इसमें डाल दिया। इंसर्ट द स्टेम बीनीथ द कट सरफेस एंड वैक्स ऑल द एक्सपोज्ड सर्फेसेस। आपने अलग अलग स्टेम्स निकाल दी और जहां जहां वो आपने वूंड करा है प्लांट में, वो जख्म करा है, उस पे वैक्स लगा दिया आपने। ठीक है जी। टैक बार्क फ्लैप बैक इनटू प्लेस टू सिक्योर द स्टेम, बार्क को हमने लगा दिया वहां पे, पूरा सिक्योर कर दिया स्टेम को। और थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि भाई बड़ी खूबसूरती से ये जो नई 3 स्टेम आपने लगाई थी वो उस मेन पेरेंट प्लांट पे ग्रो कर रही है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज दिस लेयरिंग? burying a part of the stem to create a new plant. सिंपल, प्लांट की स्टेम है, फ्लेक्सिबिलिटी तो है स्टेम में, आपने स्टेम को मोड़ा ऐसे
जमीन से टच करा, बरी कर दिया उसमें, और आपने देखा ये दिस इज हाउ वी बरी इट, और देखा आपने कि फिर नया जो है वहां से ग्रोथ शुरू हो गई. दिस इज व्हाट इज लेयरिंग. इज इट क्लियर जी? राइट. अच्छा, कटिंग ग्राफ्टिंग में अंतर क्या रहा है एक बार समझ लीजिए. कटिंग में पार्ट ऑफ द स्टेम इज कट एंड द कट एंड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट व्हेन प्लेस्ड इन द सॉइल. जैसे कि मैंगो, जैसे कि रोज, मैंने कहा था ना, गेस कीजिए कि वो कौन सा प्लांट है. रोज, गावा, लीची, लेमन, कटिंग के जरिए ये डेवलप हो जाते हैं. कई बार हम प्लांट हार्मोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं कि रूट सिस्टम बेहतर तरीके से ग्रो कर पाए, डेवलप हो. लीफ से भी ऐसा होता है और ऐसा स्टेम से भी होता है. ग्राफ्टिंग में क्या है? स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कट एंड फिटेड ऑन अनदर प्लांट कंबाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स. एप्पल में ऐसा किया जाता है, ऑरेंजेस में है, वाटरमेलन में है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में है, बहुत सारे प्लांट्स में ये किया जाता है. एग्जाम्पल्स याद रखनी है, दैट इज द मेन थिंग. लेयरिंग में क्या था? स्टेम को बेंड डाउन करा और बरी करा मिट्टी में, राइट. लेमन में है, रोज में भी ऐसा कर सकते हैं, जैस्मिन में भी करते हैं जी, चमेली. The stem of a plant is bent down until it touches the soil. Stem is then cut once it develops the roots and it grows into a new plant. So you have seen there are a variety of ways of vegetative propagation. Natural maybe, artificial maybe. So students, artificial vegetative propagation may be cutting, layering, or it may be grafting. ठीक है? So let's start. सर Yes, सर मैंगो में भी तो ग्राफ्टिंग होता है. yes, yes. Air grafting मैंगो में होता है. ठीक है? एयर लेयरिंग उसको हम कहते हैं. बूटी फॉर्मेशन, समथिंग like that. So let's quickly solve a question. Which of the following is true about the vegetative propagation? Okay. Option A says genetic variation arises frequently from vegetative propagation. Vegetative propagation is faster mechanism of reproduction and is compared to sexual reproduction. C is vegetative propagation is seen in animals, and D is layering is a type of natural vegetative propagation. So आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ से, इनकरेक्ट नहीं. दिशा, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है, फ्लावर्स वगैरह, एपीफाइट्स, उनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं. ठीक है, जो हम घर में यूज करते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए. So 30 students have answered. Okay, so 31 out of 40 have answered and 16 students have correctly answered the question. Okay, so yes, option 2 is correct. Vegetative propagation is faster mechanism of reproduction as compared to the sexual reproduction. ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन अराइज फ्रीक्वेंटली फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपगेशन गलत है. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के ही क्लोन होता है ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज सीन इन एनिमल्स, बिल्कुल गलत है, एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है. एंड लेयरिंग इज अ टाइप ऑफ नेचुरल, नो इट इज आर्टिफिशियल. ठीक है, इसीलिए ये भी गलत है. So it is true that vegetative propagation is faster mechanism of reproduction as compared to the sexual reproduction. ठीक है, it is because it does not require to wait for the development of sexual organs. Also, a stem or bud grows into a mature plant much more quickly as compared to the seed, which has go through a longer phase of growth and the development. ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर हम एक प्लांट लें, उसकी कोई भी कटिंग लें, उसको सॉइल में लें, रूटिंग हो जाएगी, उसे डेवलपमेंट हो जाएगी. ठीक है, इस तरह अगर हम नॉर्मल फर्टिलाइजेशन देखें, पहले फ्लावर डेवलप होगा, उसके बाद उसमें पोलन ग्रेन्स, फिर उसके बाद पोलिनेशन होगी, पोलिनेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के बाद सीड बनेगा, सीड के बाद
फिर दूसरा प्लांट जो है वो सीड से ग्रोथ होगा, और सीड की जर्मिनेशन में इतना टाइम लगता है, तो सारी झंझट छोड़ के एक प्लांट की हम कटिंग को यूज कर सकते हैं. ओके, so genetic variation in offsprings happens only when fusion of gametes takes place and happens in sexual reproduction. ठीक है, तो वेरिएशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन मतलब मियासिस. ओके, मियासिस या क्रॉसिंग ओवर. Vegetative propagation is characteristic feature of many plants. Layering is a type of artificial vegetative propagation. Okay? Okay, हम क्वेश्चन देखते हैं. Which method of artificial vegetative propagation has been depicted in the diagram? ठीक है, तो हम ये वाली डायग्राम जो है इसमें ये कौन सा मेथड यूज किया गया है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूं. Now the question comes: grafting, layering, cutting, or suckering? So, okay, so 33 students have answered, and out of which 27 have answered it correctly. ठीक है, so good job. The answer is the grafting. So roots, stalk and scion are slipped together. ठीक है, the grafts are then tied and waxed together. ठीक है, हम इसको लेते हैं फिर इसको टाई करते हैं. ओके, all of the given options except grafting. ठीक है, तो ग्राफ्टिंग की मैंगो भी एग्जांपल है, गुआवा भी एग्जांपल है. ओके, so now what are the phases of growth? फर्स्ट इज जिनवाइल फेज. ठीक है, जिसको हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं. सेकंड रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड इज द सेनिसेंस फेज. ठीक है, ये तीन फेज जो होते हैं प्लांट की ग्रोथ में होते हैं. जिनवाइल फेज क्या होता है, इसको हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं या फिर वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं, वेयर द प्लांट ग्रोज इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स एंड इंक्रीजेस साइज एंड मास. ओके, फिर हमारा जो है नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव फेज. तो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, प्लांट ग्रो देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि फ्लावर्स होता है, एंड अटेन्स द सेक्सुअल मैच्योरिटी, और मैच्योर हो जाता है प्लांट. सेनिसेंस पुनित हम कहेंगे कि प्लांट जब इनएक्टिविटी में चला जाता है, एक ऐसा पीरियड जिसमें प्लांट इनएक्टिव हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है कुछ भी. ठीक है, और जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके स्लोली डाई ऑफ होना शुरू हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल लीफ में हम सेनिसेंस कहेंगे जब लीफ ग्रीन होता है यूजुअली, जब लीफ येलो हो जाता है और उसके बाद फॉल ऑफ होता है प्लांट से. लेकिन फॉल होने से पहले येलो होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है वो दूसरे पिगमेंट्स में चेंज हो जाता है, डीएनए डिग्रेड हो जाता है, बाकी चीजें, मेटाबॉलिज्म उसका स्लो हो जाता है. तो उस फेज को हम सेनिसेंस कहते हैं. ठीक है, इट इज ए स्टेज ऑफ, yes सानिया करेक्ट, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ ए प्लांट. अरे प्लांट्स में लास्ट स्टेज हम नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है प्लांट यंग है, लीव्स तो फॉल होती रहती है ना, लीफ गिरती रहती हैं फिर से रिप्लेस होती रहती हैं. तो सेनिसेंस जो है वो यंग प्लांट में भी हो सकता है, ओल्डर में भी हो सकता है. ठीक है, किसी में भी हो सकता है. ओके, ये ऑर्गन स्पेसिफिक भी होता है. फॉर एग्जांपल लीव्स में होगा ये, या फिर किसी स्पेसिफिक ब्रांच में होगा, या और कहीं होगा, या फ्लावर्स में होता है कभी कभी. ओके, वेलकम पुनित. उसके बाद लास्ट फेज आता है सेनिसेंस फेज. सेनिसेंस जो होता है इट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटीरियोरेशन ऑफ प्लांट बॉडी ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट. ठीक है, तो इसमें जैसा कि मैंने बोला सारे पिगमेंट्स जो हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डीएनए ब्रेक डाउन हो जाता है, बाकी चीजें जो हैं, और प्लांट का मेटाबॉलिज्म जो है स्टॉप हो जाता है. ओके, तो प्लांट्स के अगर हम टाइप्स देखें, दे आर एनुअल, बाइनियल,
एंड पेरिनियल। एनुअल प्लांट्स हम किनको कहेंगे? वो प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल जो है एक ही सीजन में कंप्लीट करते हैं, फ्रॉम जर्मिनेशन टू प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विद इन द वन ग्रोइंग सीजन, एंड उसके बाद मर जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, बाकी चीजें एक टाइम में, ठीक है, तो उसके बाद डाई ऑफ हो जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद आते हैं दूसरे प्लांट्स, बाइनियल, ठीक है। तो बाइनियल हम उन प्लांट्स को कहेंगे कि जो अपनी लाइफ साइकिल 2 डिफरेंट सीजन्स में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एंड पेरिनियल प्लांट्स हम उनको कहेंगे जो कि 2 साल से ज्यादा रहेंगे और थ्रू आउट द ईयर रहेंगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न, ठीक है। तो फ्लावरिंग कैसी होती है, फ्रूटिंग कैसी होती है, उसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें प्लांट्स को, तो क्या क्या टाइप्स होते हैं? यस, बनियान ट्रीज कोई भी आयशा पेरिनियल ही होते हैं। एनुअल प्लांट्स जो होते हैं वो एक सीजन में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हो घर में, ठीक है, वेजिटेबल्स क्या करेंगे? ग्रो होंगे, आपने खाया वेजिटेबल्स को, उसके बाद डाई ऑफ हो गए, है ना। उसी तरह हर्ब्स जो होते हैं, बारिश के मौसम में जो हर्ब्स ग्रो होते हैं, ठीक है, 3-4 महीने रहते हैं, उसके बाद डाई ऑफ हो जाते हैं। आपने राइस प्लांट ग्रो किया, राइस प्लांट जो है, ठीक है, 3 महीने 4 महीने उसका लाइफ स्टेज है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम एनुअल कहेंगे। ओके सलोनी, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं मोनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं। मोनोकार्पिक, दे आर प्लांट्स व्हिच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ एंड आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस एंड डाई। ओके, ऑल एनुअल्स, एनुअल फॉर एग्जांपल व्हीट है, राइस है, एंड बाइनियल प्लांट्स फॉर एग्जांपल रेडिश है, कैरेट है, एंड फ्यू पेरिनियल प्लांट्स फॉर एग्जांपल फ्यू पेरिनियल प्लांट्स जो है उनको हम मोनोकार्पिक कहते हैं। तो क्या है मोनोकार्पिक? जो कि दे फ्लावर ओनली वंस इन लाइफ टाइम। ओके, देन उसके बाद आता है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक प्लांट्स, दे आर पेरिनियल प्लांट्स व्हिच रीचिंग मैच्योरिटी फ्लावर रिपीटेडली एट इंटरवल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंगो है, एप्पल है, तो ये हर साल फ्लावरिंग करते हैं, है ना, तो हम इनको पॉलीकार्पिक फ्रूट्स कहेंगे, ओके, या प्लांट्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई डाउट यहाँ पे? सानिया, देखिए मोनोकार्पिक फ्रूट्स हम उनको कहेंगे जो कि एक टाइम ही अपनी लाइफ में फ्लावर करेंगे, ठीक है, एक टाइम ही इनकी फ्लावरिंग होगी। फॉर एग्जांपल हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं या फ्लावर्स जो हम अपने गार्डन में ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उनमें से ज्यादातर फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर किया उन्होंने, उनका टाइम आया, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रहेंगे, उसके बाद डाई ऑफ हो जाते हैं। तो हम उनको क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। उन प्लांट्स को कहते हैं, सॉरी हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं जो एक टाइम ही फ्रूट दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीड्स निकले प्लांट्स के, फ्लावर्स के भी सीड निकले, तो हम उनको भी मोनोकार्पिक फ्रूट्स ही कहेंगे। वो व्हीट है, राइस है, ठीक है, या बाइनियल प्लांट्स है, रेडिश है, कैरेट है, ठीक है। तो पॉलीकार्पिक फ्रूट्स में वो आते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल आता है, मैंगो आता है, जो कि हर साल फ्लावरिंग भी होती है और फ्रूटिंग भी होती है। लार्ज ट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट, मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट्स हम उनको कहेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल तो मुझे नहीं याद है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि वो थ्रू आउट लाइफ एक बार ही फ्लावरिंग होती है उनकी और एक बार ही फ्रूटिंग होती है। ओके, पर जैसे कि आपने देखा होगा एग्जांपल बैम्बू ट्रीज हैं, बैम्बू, यस,
बैम्बू ट्रीज में ऐसा होता है। यस प्रिया, बैम्बू, यस यस, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यस, बैम्बू की एग्जांपल यहाँ पे है। बैम्बू का क्या है, इट हैज अ लॉन्ग लाइफ स्पान, ठीक है, 40 to 80 ईयर्स, स्टे विदाउट फ्लावरिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर टाइम तक फ्लावरिंग नहीं होती है। बैम्बू ऑफ सेम स्पीशीज आर फ्रॉम द सेम पेरेंट बूम फ्लावर एट द सेम टाइम इवन इफ सेपरेटेड बाय ह्यूज डिस्टेंसेस, ठीक है। अगर आप एक ही प्लांट है, एक ही क्लोन है, तो उनको अगर आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रखोगे, लेकिन उनका जो जेनेटिक है, जेनेटिक में फ्लावरिंग एक ही टाइम पे होता है, ठीक है। चाहे उनको डिफरेंट जगह पे रखो, एक ही जगह पे रखो, उनकी फ्लावरिंग जो होगी एक ही टाइम पे होगी, एक ही ईयर में होगी और एक ही मंथ में होगी, ओके। इमीडिएटली आफ्टर फ्लावरिंग दे डाई, और फ्लावरिंग जो होता है उनका लास्ट वाला स्टेज होता है, और फ्लावरिंग के बाद दे डाई, ठीक है। एंड दे आर मोनोकार्पिक, दैट इज दे फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ओके। yes we can grow them by vegetative propagation, ठीक है। पॉइंट 3 देखो, हाँ मुस्कान, क्या होता है, बैम्बू ट्री जो है एक ही स्पीशीज के हैं। अगर एक ही प्लांट है, फॉर एग्जांपल आपका एक ही प्लांट है, आपने उसे प्रोपेग्यूल्स ले, उसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, उससे आपने 1000 प्लांट्स लगा दिए, मगर एक ही पेरेंट प्लांट से, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही फ्लावरिंग एक प्लांट में होगी ना, तो ऑटोमेटिकली सारे प्लांट्स में एक ही टाइम पे फ्लावरिंग होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका पेरेंट जो है, उसका जेनेटिक मेकअप जो है उसमें ऑलरेडी फिक्स्ड है कि इस प्लांट में इस टाइम पे फ्लावरिंग होगी, और फ्लावरिंग जो है उसी टाइम पे ही होती है, ओके। तो यही इसका कहने का यही मतलब है, ओके। यस पुनित, हम इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो नीला कुंजी, इस प्लांट नीला कुंजी, इस प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है ये, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम है स्ट्रॉबिलैंथिस कुंथियाना, ठीक है। तो इट ब्लूम्स ओनली 1 in 12 years, ठीक है। 12 साल में एक बार ही फ्लावर करता है, और ये भी मोनोकार्पिक फ्लावरिंग प्लांट है। ग्रोज एक्सटेंसिवली इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। तो क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स में, तमिलनाडु में ये फ्लावर होता है। और लास्ट टाइम ये देखा गया है कि ये प्लांट जो है 2017 में फ्लावर हुआ है, या फिर 2018 में, शायद इन 2 ईयर्स में फ्लावर हुआ है, ओके। अब इसके 12 साल बाद नेक्स्ट फ्लावरिंग होगी इसकी, ओके। पुनीत, इसका यूज आई डोंट नो व्हाट इज इट्स यूज, हो सकता है कोई मेडिसिनल यूज हो इसका, बट हाँ ये इंडेंजर्ड प्लांट है, ठीक है। क्योंकि इसकी 12 साल में एक बार होती है रिप्रोडक्शन, एक बार ही होगी, एक बार ही फ्लावरिंग होगी, तो इसकी जो पॉपुलेशन है डिक्रीज हो रही है, ओके। यस, एनी डाउट? कोई डाउट स्टूडेंट्स? ओके, लेट्स कंटिन्यू। गुड। तो देखिए, रिप्रोडक्शन जो है 2 टाइप की है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, और जेनेटिक आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होता है। लेकिन सेक्सुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईदर और 1 or 2 पेरेंट्स, ठीक है। और जेनेटिकली यूनिक ऑफस्प्रिंग बनता है इसमें, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो क्या क्या इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं, इसमें गैमेटोजेनेसिस होती है और गैमेट ट्रांसफर होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ, और उसके बाद लास्ट पे जो है एम्ब्रियोजेनेसिस है। तो प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके लिए नेक्स्ट यूनिट आपके लिए सेपरेट यूनिट है, तो डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यूनिट जो है डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स,
ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो गैमेट जो है होमोगैमेट्स भी हो सकते हैं, हेटेरोगैमेट्स भी हो सकते हैं। होमोगैमेट्स में हम क्या कहेंगे, किनको कहेंगे कि फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, एक जैसे होते हैं, क्लेब्डोफोरा में, क्लेमेडोमोनास में, इस वाले गैमेट्स में और इस वाले गैमेट में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? सिनगैमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग सेल, ठीक है। तो पुनित अभी के लिए इतना ही याद रखो, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग सेल, इसको हम सिनगैमी कहेंगे। डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में कोई फर्क नहीं है, तो हम इसको होमोगैमेट कहेंगे, ओके। और हेटेरोगैमेट क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, फॉर एग्जांपल फ्यूकस, वोल्वक्स और चारा, ठीक है, कारा। तो हेटेरोगैमेट्स में क्या होता है कि मेल गैमेट अलग होगा, फीमेल गैमेट अलग होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एग सेल कितना बड़ा है और स्पर्म सेल कितना छोटा है ना डिफरेंट ये, तो इनको हम हेटेरोगैमेट्स कहेंगे। अरे होमो मींस सेम, ठीक है। सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन में कोई फर्क नहीं है। सिनगेमी इज फ्यूजन ऑफ एग सेल विद द स्पर्म सेल, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। सिनगेमी ही फर्टिलाइजेशन है। तो देखिए सेक्सुअलिटी इन लोअर ऑर्गेनिजम्स क्या है? एक्सप्लेन वन मोर टाइम। देखिए कहां गया, यस। तो देखिए होमोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स में डिफरेंस क्या है? होमोगैमेट्स मींस सेम गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में कोई फर्क नहीं होगा। देखिए ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, कोई फर्क लग रहा है इनमें? नहीं लग रहा, तो हम इनको होमोगैमेट्स कहेंगे। एग्जांपल है कैलेडोफोरा और क्लेमेडोमोनास, इन ऑर्गेनिजम्स में गैमेट्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। हेटेरोगैमेट्स में मेल गैमेट अलग होगा, फीमेल गैमेट डिफरेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो फीमेल गैमेट कितना बड़ा है, एग सेल, ठीक है, और मेल गैमेट देखो कितना छोटा सा है, इतना सा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, इसीलिए हम इनको कहेंगे हेटेरोगैमेट्स। तो एग्जांपल है फ्यूकस, वोल्वोक्स एंड कारा। तो इन ऑर्गेनिजम्स में हेटेरोगैमेट्स होते हैं, मतलब मेल गैमेट डिफरेंट होता है, फीमेल गैमेट डिफरेंट होता है, ठीक है। यस यस करेक्ट बोले। ओके वेलकम। तो अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखें सेक्सुअलिटी इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स अगर हम कहें तो अलगे, ठीक है। तो इनमें दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलगे और फंगे में, होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक मींस, होमो मींस सेम, बोथ द गैमेट्स बिलोंग टू द सेम पेरेंट, फॉर एग्जांपल म्यूकर, म्यूसिडो, ठीक है। तो क्या होता है, होमो सेम है तो दोनों जो गैमेट हैं एक ही पेरेंट के होंगे, ठीक है। ये एक गैमेट है, एक गैमेट है, ठीक है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों गैमेट जो है एक ही पेरेंट से होंगे, ठीक है। और हम फंगे की अगर बात करें तो हम पढ़ेंगे डिटेल में फंगे के बारे में। तो उनका जो बॉडी है थैलाइड होती है, ठीक है। तो उनमें जो रिफ्लेक्शन होती है, एक थैलस जो है प्लस कहा जाता है, एक को माइनस कहा जाता है, ठीक है। अरे मेल और फीमेल, ओके, तो इनमें मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो होमोथैलिक कहेंगे, ठीक है। हेटेरोथैलिक में क्या होता है, बोथ गैमेट्स बिलोंग टू डिफरेंट पेरेंट्स, ठीक है। तो एक स्ट्रेन है, यहाँ पे एक फंगस है, यहाँ पे दूसरा फंगस है, इससे स्ट्रेन पॉजिटिव है, इससे नेगेटिव है, तो डिफरेंट पेरेंट्स है ना, ये पेरेंट एक्स है, ये पेरेंट वाई है, ठीक है। यहाँ पे एक ही पेरेंट है एक्स, इसी से दो निकल रहे हैं तो हम इसको होमोथैलिक कहेंगे। अगर दो डिफरेंट हैं तो हम इसको हेटेरोथैलिक कहेंगे। तो एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, जिसको हम यीस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो हेटेरोथैलिक मतलब दो अलग अलग थैलाए हैं, ठीक है, दो अलग अलग डिफरेंट फंगे हैं, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। होमोथैलिक मतलब दोनों गैमेट्स जो हैं एक ही प्लांट से या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म से, ओके। कोई डाउट? तो देखिए नेक्स्ट जो है मोनिशियस प्लांट, कारा। मोनिशियस प्लांट हम किसको कहेंगे, कमेंट कर में बताइए आप।
पुनित पीडीएफ जो है आपको टेक टीम प्रोवाइड करेगी। आपको पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं इसके? सो आई होप आपको पीडीएफ मिल रहे हैं। ओके, आई विल फॉरवर्ड योर कंप्लेंट, ठीक है। तो देखिए, मोनिशियस प्लांट्स हम किन को कहेंगे? मोनिशियस वो वाले प्लांट्स हैं जिन पे दोनों ऑर्गन्स, मेल सेक्सुअल गैमेट एंड फीमेल सेक्सुअल गैमेट, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। या फिर मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर अगर एक ही प्लांट पे है तो हम उसको क्या कहेंगे? यस आयशा, करेक्ट, बिल्कुल सही। मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट पे होंगे तो हम उनको मोनिशियस कहेंगे। अगर अलग अलग हैं तो हम डाइशियस कहेंगे। तो मोनिशियस प्लांट हम कारा की एग्जांपल लेते हैं। कारा क्या है? एक ग्रीन अलगा, ठीक है, इट इज ग्रीन अलगे। तो इसमें देखिए जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये क्या है? ओगोनियम जिसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे, एंड एंथ्रीडियम जिसको हम मेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। और तो हम जो है ओगोनियम को हम ग्लोब्यूल भी कहते हैं एंड एंथ्रीडियम को हम न्यूसियूल भी कहते हैं। हम कारा की बात करें, ठीक है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन ग्लोब्यूल एंड मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और न्यूसियूल, ठीक है। तो याद रखना, ग्लोब्यूल हमेशा क्या होता है? ऊपर होता है, और एंथ्रीडियम या फिर न्यूसियूल क्या होता है? हमेशा नीचे होता है। ओके, तो ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा। ओके, तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गन जो है ऊपर है, कौन सा ऑर्गन नीचे है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्लोब्यूल क्या है, न्यूसियूल क्या है। ओके, नेक्स्ट इज डायोशियस प्लांट मार्केंशिया। डायोशियस कौन से प्लांट होते हैं? यस, जिनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स डिफरेंट हो। मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, ठीक है। तो देखिए इस प्लांट में दिस इज द फीमेल थैलस एंड दिस इज द मेल थैलस। तो फीमेल थैलस में अगर हम देखें तो आर्चिगोनियोफोर, ठीक है, ये ब्रांच है, इसमें आर्चिगोनिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। और ये एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडियोफोर, और यहाँ पे एंथ्रीडिया है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। ओके, तो अगर हम सेक्सुअलिटी इन हायर प्लांट्स में देखें, मोनिशियस हम किन को कहेंगे? बोथ स्टेमिनेट फ्लावर्स एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। फॉर एग्जांपल कुकुरबिट्स है, मेस है, ज्यादातर प्लांट जो है मोनिशियस ही होते हैं, ठीक है। ज्यादातर प्लांट्स मोनिशियस ही होते हैं जिनमें के मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स डायोशियस होती हैं जिनमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। ओके, तो स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स आर borne on two different plant bodies। तो इसकी एग्जांपल है पपैया एंड डेड पाम, याद रखना एग्जांपल्स, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल हम उस फ्लावर को कहेंगे द प्लांट बॉडी बियर्स द कंप्लीट फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, एग्जांपल चाइना रोज। और कुछ ऐसे प्लांट भी है जिसपे बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल प्लांट्स फ्लावर पार्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो मोनिशियस प्लांट्स जो हैं इनमें दो टाइप हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन एक ही प्लांट पे दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर एक ही फ्लावर में पिस्टिलेट फ्लावर्स भी हैं और स्टेमिनेट भी हैं। ओके, यस, हिबिस्कस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है उसका बाइसेक्सुअल है। ओके, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर की हम बात करें, अगर बोथ एंड्रोशियम गाइनोशियम प्रेजेंट एक ही फ्लावर में होता है, चाइना रोज,
जैसा कि अभी कहा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें यहां से ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, ये वाला, ठीक है। दोनों एक ही प्लांट में होते हैं। यस, हर्माफ्रोडाइट जो है वो मोनोसिस बाइसेक्सुअल, दे आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। करेक्ट प्रिया। लेकिन हर्माफ्रोडाइट वो जो है हम एनिमल्स में यूज करते हैं, ठीक है, प्लांट्स में हम ये यूज नहीं करते हैं। मुस्कान, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन डायोशियस। डायोशियस जो है मेल प्लांट अलग है, प्लांट बियरिंग मेल फ्लावर्स अलग है, फीमेल फ्लावर्स अलग। बाइसेक्सुअल जो है उसमें एक ही फ्लावर में स्टेमिनेट फ्लावर्स भी होंगे, पिस्टिलेट फ्लावर भी होंगे, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होंगे। ओके, तो ये डिफरेंस है बिटवीन डायोशियस एंड बाइसेक्सुअल प्लांट। ओके, तो पिस्टिलेट फ्लावर में क्या होगा, फ्लावर्स हैव गाइनोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो पिस्टिलेट मतलब फीमेल पार्ट होगा उसमें, ठीक है। और फाउंड इन यूनिसेक्सुअल और डायोशियस प्लांट्स, ठीक है। तो उन प्लांट्स में होते हैं ऐसे फ्लावर जो कि यूनिसेक्सुअल हैं या फिर डायोशियस भी हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही टाइप का फ्लावर उनमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है फ्लावर्स में, व्हाट इज द स्टडी नेम ऑफ चाइना, अरे चाइना रोज तो यही होता है ना, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। हिबिस्कस इसका नाम है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ओके, तो देखिए, इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। और नॉन फ्लावरिंग अदर प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स लाइक algae, bryophytes, pteridophytes use of water as medium to transfer the gametes. The male gametes are produced in large number in order to increase the chances of fertilization. तो फ्लावरिंग प्लांट में बहुत इजी है, गैमेट ट्रांसफर हो गए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर से, स्टेमिनेट फ्लावर से पिस्टिलेट फ्लावर तक, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो है उनमें प्रॉब्लम है, जैसे कि अलगे है, ब्रोइफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, इनमें तो फ्लावर्स होते नहीं है। तो इनमें क्या होता है कि वाटर मीडियम एक्ट करता है, ठीक है। तो वाटर में गैमेट्स रिलीज होते हैं और फिर मेल प्लांट से फीमेल प्लांट में गैमेट जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। ओके, लेकिन गैमेट्स को बहुत ज्यादा नंबर में इंक्रीज करना है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, सो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक प्लांट, ठीक है, हैप्लाइड उसका दूसरे प्लांट का हैप्लाइड गैमेट्स फ्यूज करते हैं और डिप्लाइड जाइगोट बनता है कि नहीं। तो ये चीज हम देखेंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, जाइगोट है हमारे पास, डिप्लाइड स्ट्रक्चर है, उसके बाद सेल डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा और एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर होता है। तो क्या होता है इसमें, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन द मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। तो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होने के बाद क्या होगा कि मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनेगा। ओके, और दूसरी चीज क्या होता है, सेल फ्रॉम स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ऑर्गन्स टू फॉर्म ए ऑर्गेनिज्म। और खाली सेल डिवीजन ही नहीं करना है, स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन करनी है। फॉर एग्जांपल लीफ बनना चाहिए, ब्रांच बनना चाहिए, रूट बनना चाहिए, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए ना सेल डिवीजन। ओके, तो क्या बनता है फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनता है, मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनता है फिर। ओके, तो हम क्वेश्चन देखते हैं एक, vegetative propagule in agave is termed as आई, राइजोम, बल्बिल या ऑफसेट। अगेव की बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है।
ओके, सो 27 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड और 13 लोगों ने सही आंसर दिया है। तो आंसर इज बल्बिल, ठीक है। तो क्या होता है, आई होता है पोटैटो में, राइजोम में राइजोम होता है जिंजर में, बल्बिल होता है अगेव में, एंड ऑफसेट्स होते हैं वाटर सैंथ में। ओके, सो आज हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा, एंड लास्ट पे हमने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, इट वुड बी asexual and sexual reproduction in the animals, ठीक है। So keep learning dear students. Any doubt in today's class? बताइए, कोई डाउट हो? Punit, thank you so much. Okay. Sir, what is agave, sir? Agave प्लांट एक है, Yes. डिफरेंस बिटवीन मोनीशियस एंड बाइसेक्सुअल। मोनीशियस में क्या होता है, मुस्कान के एक ही फ्लावर जो है, एक प्लांट पे एक ही फ्लावर होगा। फॉर एग्जांपल मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। और बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल फ्लावर भी होंगे और फीमेल फ्लावर भी होंगे। आपने सनफ्लावर देखा है, सनफ्लावर में दोनों फ्लावर होते हैं, ठीक है। दोनों टाइप के जो गैमेट्स होते हैं, पिस्टल और स्टैमन, एंड्रोशियम गाइनोशियम, एक ही इस पे होगा। ओके, so I hope Muskan you have got the answer. Yes Roman, कौन सा क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे थे to all the students? रोहन, ऐसा नहीं होता है, this is not possible, you are not allowed to do this. Okay, okay, great. So how was today's class? Out of 5 आप क्या रेटिंग करोगे मुझे? सर 5 स्टार। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सर रोज में क्या होता है सर, फीमेल मेल दोनों होते हैं? यस, रोज में भी दोनों होते हैं, करेक्ट। रोज बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ओके सर। ठीक है। और हम हर्माफ्रोडाइट उनको कहते हैं, एनिमल्स में कहते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल अगर होगा, जैसा कि अरब नहीं क्या कहते हैं इसको, फ्रूट फ्लाई का क्या नाम है, फ्रूट फ्लाई को हम क्या कहते हैं, ड्राजोफिला, ड्राजोफिला है ना, उसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ओके, यस, अर्थवर्म्स को भी हम कहते हैं, करेक्ट होने, ठीक है। यस रिया, एग्जैक्टली। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि एंड्रोशियम भी होता है, गाइनोशियम भी होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर पार्ट्स, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्लास के बाद आप मुझे रेट जरूर करना, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, और कोई भी डाउट हो आज की क्लास के रिलेटेड आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके, ओके, गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, एंजॉय रीडिंग। ओके, थैंक यू एवरीवन।